So if you people remember what we have done in our previous class, then you must be knowing that, sir, we understood the preparation method of dioxygen. We understood how to prepare dioxygen from different materials. And we also saw the properties of oxygen, how oxygen, the second most electronegative element, is reacting with almost all elements in the periodic table except your gold, platinum, and as well as your noble gases. इन्हें छोड़ के बाकी सबके साथ हमारा ऑक्सीजन जो है वो रिएक्शन करता है, right? And then we saw few important chemical reactions in the last class, and then the uses of our oxygen. We all know uses of oxygen में सबसे important चीज, sir, oxygen is most important for our respiration, that is for our well-being, for our human body and every other organism, aerobic organism जो ऑक्सीजन को इनहेल करता है, उन सब के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा हॉस्पिटल्स में ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पेंडेमिक, ऑक्सीजन वाज ऑफ ह्यूज यूज in our hospitals during the second wave, and then it is used in welding and in other processes, say for example your scuba diving, your high altitude mountaineering, and for all those things we need oxygen cylinders. And along with that, it is also used, or it is also required for the combustion of our gases or our fuels. So these were the few uses of our oxygen. Now we will move ahead. We will try to understand simple oxides. Okay, what are the simple oxides of oxygen? We are going to understand what is the meaning of oxide. Okay, simple oxide. Now oxide, that means oxygen is present in its -2 oxidation state. That is the most important thing. Okay, oxide means oxygen is present in its -2 oxidation state. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्साइड बोलते हैं. एंड वही अगर O2 -2 है, that means इसको हम लोग बोलते हैं पेरोक्साइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड बोलते हैं. वही अगर हमारे पास O2 -1 है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सुपर ऑक्साइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सुपर ऑक्साइड. सो वी हैव ऑक्साइड, वी हैव पेरोक्साइड, वी हैव सुपर ऑक्साइड. ऑक्साइड इज O2 minus, peroxide is O2 minus, and superoxide is O2 with a minus. That means what, sir? Anywhere we have oxygen which is existing with a negative oxidation state, then we will call it as nothing but our oxide. Now that may come in the form of oxide, peroxide, superoxide. Okay, that's a different thing, but negative oxidation state के साथ होगा तो हम लोग उसे एक ऑक्साइड पक्का बोलेंगे. जैसे क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होने से क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, नाइट्रोजन N3- nitride. In that way we are having our oxide. Is there any problem with this? No, sir. Now today in this class we are going to talk about our binary oxides. We are going to talk about your binary oxides. So people who are having IP are very much acquainted with this word binary. Yes or no? Yes, sir. Because हम लोगों को पता है binary means nothing but zeros and ones. That means there are only two things, either it's a 0 or it's a 1. In the same way यहाँ पे binary oxide का meaning है एक element रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, बस. मतलब ये EXOY हो सकता है, but only in the compound there will be only two components, that is your oxide, that is your oxygen, and the element. When you are having only two things coming together, when there are only two elements coming together to form an oxide, we will call them as binary compounds, that is your binary oxide. Do you people understand this, sir? Yes, sir. Yes, sir. What is the meaning of a binary oxide, sir? An element and oxygen, only two components, there will be nothing else. That is why we will call it as nothing but our binary oxide. Okay, so
let us move ahead. Let us understand. A binary compound of oxygen with another element is called oxide. A binary compound of oxygen with another element. Another element is present and your oxygen is present. So if you are having a binary compound, then we will call it as nothing but your binary oxide. Right. So oxygen, as we have already told you, sir, that it reacts with almost all elements. That means it reacts with metals, it reacts with non-metals, it reacts with metalloids, it reacts with everyone. ऐसा ही एक और है पीरियोडिक टेबल में जो कि सबके साथ रिएक्ट करता है. क्या आप लोगों को पता है कौन है वो? हाइड्रोजन. Yes, beautiful. Hydrogen. Who answered that? Jignesh, very good beta. Hydrogen is one more such element जो almost सबके साथ reaction show करता है, सबके साथ. मतलब वो भी नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ, मेटलॉइड्स के साथ, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ, वो भी किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. यही दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन एंड एज वेल एज योर हाइड्रोजन, जो ऑलमोस्ट सबके साथ रिएक्ट करते हैं. राइट, वेरी गुड सर. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं. बट इनका जो ऑक्साइड्स बनता है सर, इनका नेचर देखिए, तो मैंने अभी बता दिया आप लोगों को. ब्रॉडली अगर मैं क्लासिफाई करूंगा तो मैं बोलूंगा सर इधर मेटल ऑक्साइड्स हो सकते हैं हमारे पास, सर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हो सकते हैं हमारे पास, या नहीं तो हम लोगों के पास और क्या हो सकता है सर, बताइए जरा. मेटलॉइड. नहीं, हाँ, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलेंगे. तो जिसको कि हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड. ओके, मुझे यहाँ पे मेटलॉइड का ही ऑक्साइड लिखना चाहिए था. ओके, एम्फोटेरिक बाद में यूज करूंगा इस टर्म को. यहाँ पे मैं लिख देता हूं मेटलॉइड का ऑक्साइड, मेटलॉइडिक ऑक्साइड. वेरी सिंपल एंड वेरी इजी. नाउ अंडरस्टैंड समथिंग सर. From our previous discussion and as well as from our 10th class, we know this, metal oxides are generally basic in nature. Yes or no? Yes sir. हम लोगों को ढेर सारे एग्जाम्पल्स पता है. कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे ही हम लोग इसको वाटर में डाल देते हैं, ये लाइम, क्विक लाइम बन जाता है. दैट इज योर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यस. से फॉर एग्जाम्पल उसी तरह से आप लोगों ने मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले लिया, आपने वाटर में डाल दिया, इमीडिएटली ये आप लोगों को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे देगा. आपने सोडियम पेरोक्साइड Na2O2 को लेके आपने सिंपली वाटर में डाल दिया, बिकॉज सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाता है, तो इसने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया. दैट मीन्स with reaction with water they will always form bases, alkalis. That is why we are calling them as nothing but basic oxides. So all of our metal oxides are going to be basic oxides. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. In the same way all of our non metallic oxides जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, 15th ग्रुप में भी डिस्कस किए हैं, they will be acidic in nature. चलो इसका भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सर आप कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए हम लोगों को समझने के लिए. चलो ठीक है, देखते हैं. देखिए, सो यू टेक कार्बन डाइऑक्साइड, यू एड इट विथ वाटर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोरोजन में देखे थे हम लोग, ये कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर कार्बोनिक एसिड बना देता है. यस और नो सर? Yes sir. यस. उसी तरह से सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर का ट्राइऑक्साइड, इसको भी वाटर के साथ ट्रीट कर दीजिए, H2SO4 बना देगा. Yes. या नहीं तो सल्फर का डाइऑक्साइड ले लीजिए, इसको भी वाटर के साथ ट्रीट कर दीजिए, सल्फरस एसिड बना देगा, H2SO3. Okay, so that means from here what we are learning is, sir, oxides of any metal is going to be a basic oxide, जो हम लोगों को पहले से पता है. Oxide of a non-metal is going to be your acidic oxide. Okay, now what about our metalloidic oxides, especially those oxides of aluminium, say for example Al2O3, aluminium का oxide. ओके, गैलियम का ऑक्साइड. राइट, ये जनरली क्या होते हैं सर, एम्फोटेरिक होते हैं इन नेचर. व्हाट आर दो? they are amphoteric in nature. What is the meaning of amphoteric? They can behave as acid acidic oxides and as well as your
बेसिक ऑक्साइड्स. दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्पेशली इंटरेस्टेड इन. हम लोग स्पेशली इंटरेस्टेड है इन ऑक्साइड्स पे. चलिए इन ऑक्साइड्स को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत और देख लेते हैं. सर अगर एक गिवन मेटल जो है ये एक से ज्यादा ऑक्साइड बना सकता है. से फॉर एग्जांपल मैं बोलूंगा कि मेरे पास मैंगनीज है जो कि MnO बना सकता है, जो कि MnO2 बना सकता है, जो कि MnO4 बना सकता है विद अ माइनस. ऐसे मैंने बोला. अब मैंने पूछा तुम लोगों को मैंगनीज इज अ मेटल. डू वी नो दिस? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. Manganese is a strong, is a transition metal. Obviously pure metals होते हैं ये. Now metal का ऑक्साइड बताओ ये एसिडिक होते हैं कि बेसिक होते हैं? Acidic. No, sir. Basic होंगे. Metal. बेसिक होंगे क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं. राइट. इफ मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक, सर इसमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा और सबसे कम बेसिक कौन होगा? हम लोग उसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट सर कम रहेगा वो वाला एसिडिक वो होगा. वाला ज्यादा बेसिक होगा. Basic बहुत होगा. अच्छा बात है क्योंकि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है दैट जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट लार्ज रहता है, कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर बड़ा रहता है तो वो Acidic. एक यस लुईस एसिड के जैसा बिहेव करता है करके मैंने पहले ही बोल दिया था. सोचिए यहाँ पे मैंगनीज ना +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है. मतलब ये 1 महीने से भूखा है, कोई इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लेगा, ये भूल जाएगा कि ये एक मेटल ऑक्साइड है, ये क्या है, इसको उससे मतलब नहीं है. मैंगनीज इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इज हाईली इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, विल try to go down to a smaller oxidation state and hence it will immediately act as a Lewis acid. क्या ये बात समझ में आ रहा है सर आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. एंड आप लोगों का नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ना उनका भी सेम है. जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ा हो जाएगा आपका नॉन मेटल का, एसिडिक कैरेक्टर उतना ही लार्ज हो जाएगा. क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई वांट यू पीपल टू रिमेंबर दीज थिंग्स. दीज आर द प्लेसेस फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गेट क्वेश्चंस. सो यू पीपल हैव टू रिमेंबर इट वेरी वेरी प्रॉपर्ली. राइट. चलिए तो वंस हमें पता चला, अब हम लोग थोड़ा टेक्स्ट बुक देख लेते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है. नाउ oxides can be simple, that is MgO, Al2O3, or they can be mixed, Pb3O4, Fe3O4 etc. देखिए सर मिक्स्ड ऑक्साइड्स मींस यहाँ पे जो मेरा मेटल रहता है ये मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. सिंपल ऑक्साइड्स मतलब जो मेरा मेटल होगा या नॉन मेटल होगा वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. क्या ये बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाता हूं, ध्यान से देखिए. हम लोगों का MgO है मेरे पास, ये एक सिंपल ऑक्साइड बोलते हैं इसको. क्यों बोलते हैं हम लोग सिंपल ऑक्साइड? बिकॉज मैग्नीशियम को X लूंगा, ऑक्सीजन को -2 लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा तुम्हारा मैग्नीशियम का +2 है करके पता चल जाएगा. बट अब देखिए तो Pb3O4 को देखिए आप लोग, Pb3O4 यहाँ पे मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं. कैसे पता चलेगा? देखिए तो आप X ये है -2, 3x - 8 is equals to 0, x is equals to 8/3. क्या आप लोगों को याद आ रहा है रेडॉक्स रिएक्शंस में हम लोगों ने एक पैराडॉक्स देखा था, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का पैराडॉक्स देखा था, याद आ रहा है सर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जहां पे हम लोगों ने बताया था when you get a fractional oxidation state for any element in a compound, that means that is average oxidation state. That Yes, means sir. यहाँ पे जो element है ये एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है. बहुत अच्छा बात है सर. चलिए that's beautiful that you people remembered. So अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा. नंबर 1 बाइनरी ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, नंबर 2 सिंपल ऑक्साइड का मीनिंग क्या है, नंबर 3 आप लोगों का मिक्स्ड ऑक्साइड का मीनिंग क्या है. सो बाइनरी ऑक्साइड सिर्फ दो एलिमेंट, एक ऑक्सीजन रहेगा दूसरा एक एलिमेंट और रहेगा, उनके बीच में जब ऑक्साइड बनता है तो उसे हम लोग बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं. नंबर 2 सिंपल ऑक्साइड where the element is present in single oxidation state,
Okay, then we will call it as a simple oxide. Mixed oxide, when the element is present in more than one oxidation state, then we will simply call it as nothing but a mixed oxide. Is this clear, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Chaliye. Simple oxides can be classified on the basis of their acidic, basic or amphoteric oxides. See, here we are talking about the simple oxides. Actually, हम लोगों का mixed oxides जो है ना, ये disproportionation show कर सकते हैं. मतलब ये एक ही compound acidic, basic दोनों behavior भी show कर सकते हैं. मतलब we cannot simply talk about this like what is going to happen. So basically हम लोग किसको simple oxides को classify कर रहे हैं. We are trying to classify them as acidic oxides, basic oxides, and as well as our amphoteric oxides. We are trying to classify them into these three parts. Okay, very good. Now see, an oxide that combines with water to give an acid is termed as an acidic oxide. अभी हम लोगों ने देखा, ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने देखा, an oxide which combines with water to give an acid is called as nothing but your acidic oxide. Is there any problem with this? No, sir. No, sir. Yes. No, sir. Examples में देखिए हम लोगों को क्या है, SO2, CO2, Cl2O7, N2O5. हम लोग भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए थे. SO3, SO2, CO2, ये हमारे कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स के एग्जाम्पल्स हैं. वेरी गुड. नेक्स्ट, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में दिया है, फॉर एग्जाम्पल SO2 combines with water to form H2SO3. मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, H2SO3 is called as sulfurous acid. Sulfuric acid नहीं सर. Yes, sulfurous acid. Sulfuric acid is H2SO4. Okay, right. बहुत अच्छा बात है, हमें समझ में आ रहा है. तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं. Acidic oxides, तो हमें पता चल गया सर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक ऑक्साइड्स. एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिया. SO2 हो गया, Cl2O7 हो गया, SO3 हो गया, CO2 हो गया. ओके, नॉन मेटल के ही ऑक्साइड होंगे लेकिन न्यूट्रल होंगे. मैं आप लोगों को दो ऐसे बताया था जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होंगे लेकिन न्यूट्रल होंगे. कौन बता सकता है? दो ऐसे ऑक्साइड्स का मैं एग्जाम्पल दिया था जब जस्ट अभी 15th ग्रुप पढ़ाते वक्त मैंने एग्जाम्पल दिया था और याद रखने के लिए भी बोला था. सब कोई याद नहीं रखता है. बताया गया था कि नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोथ आर न्यूट्रल. बताया गया था. Yes, sir. Yes, sir. तो भूल जाने से कैसे चलेगा, राइट? सो न्यूट्रल, क्योंकि नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं हमें पता है, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसे नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जो कि न्यूट्रल है. स्पेशली हम लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड एंड एज वेल एज योर नाइट्रस ऑक्साइड. ओके, अब देखो टेक्स्ट बुक में एक स्टेटमेंट दिया है. एज अ जनरल रूल ओनली नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, बट ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट also have acidic character. तो हम लोगों ने ये भी बात कर लिया है, अभी बात किया है हम लोगों ने. कुछ एलिमेंट्स जो है जो ऑलरेडी अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेंगे, दे कैन एक्ट एज एसिड्स और दे कैन शो योर एसिडिक कैरेक्टर. ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद दिस? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तो यहाँ पे लिख देते हैं, even metallic oxides where metals have high oxidation state, very high oxidation state in terms, right? चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. तो इसका भी एग्जांपल्स कुछ लिख लीजिए आप लोग, बहुत जरूरी हो जाएगा हम लोगों के लिए. तो हम लोगों का एग्जांपल्स क्या है? M2O7 जो कि एक एसिडिक ऑक्साइड है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. CrO3 क्रोमियम, V2O5 वेनेडियम, ये सब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में. वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. दैट मींस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एसिडिक बिहेव
बिहेवियर शो करेंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है, आगे बढ़ते हैं। बेसिक ऑक्साइड्स, ये जनरली कौन सा ऑक्साइड्स होते हैं? हमारे मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं। यस और नो सर? Yes, sir. राइट। तो चलिए टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहा है? द ऑक्साइड्स विच गिव अ बेस, उनके एग्जांपल्स दे दिया है। सोडियम ऑक्साइड, दिस इज सोडियम Na2O, ओके। इसने सिंपली हम लोगों को सोडियम ऑक्साइड दिया है। हम लोगों को इसके साथ साथ क्या दिया है? कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि हम लोग एग्जांपल ऑलरेडी ले लिए हैं। बेरियम ऑक्साइड, यस, दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ योर बेसिक ऑक्साइड्स, दैट इज योर मेटेलिक ऑक्साइड। ओके, वेरी गुड। चलिए अब आते हैं हम लोग सम मेटल ऑक्साइड्स के पास। चलो, हम लोगों को शुभश्री बोल रही है सर N2O भी तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। 100% करेक्ट हो बेटा आप, N2O भी एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आते हैं हम लोग कुछ मेटल ऑक्साइड्स ही हैं जो कि ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। याद रखिए, कुछ मेटल ऑक्साइड्स ही होते हैं जो कि ड्यूअल बिहेवियर शो करते हैं। उन्हें हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक Amphoteric oxide. ऑक्साइड्स। उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं, जो कि एसिडिक ऑक्साइड्स के जैसा एज वेल एज बेसिक ऑक्साइड्स के जैसा बिहेव कर सकते हैं। ओके, दे रिएक्ट with acids as well as bases, that is your alkalis। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हम लोगों का एल्यूमिनियम ऑक्साइड। याद रखिए, इसका जो दो रिएक्शन मैं अभी बताने वाला हूं, आप लोगों का नीट, जेई मेंस, OUAT अगर लिखते हैं आप वो, एंड एज वेल एज आप लोगों का सीबीएसई, ऑल द 3 प्लेसेस के लिए ये दोनों रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोगों को इन रिएक्शंस पे काफी ज्यादा दिलचस्पी रहता है, राइट? तो चलिए देखते हैं हाउ आर एल्यूमिनियम ऑक्साइड विच इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट्स डिफरेंटली इन डिफरेंट मीडियम्स। तो मैंने सबसे पहले एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग अदरवाइज एल्यूमिना भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एल्यूमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे नालको में हम लोग बॉक्साइट को एल्यूमिना में ही कन्वर्ट करके भेज देते हैं, या बॉक्साइट को सिंपल हाइड्रोलिक क्लीनिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन ये सब करके हम लोग यहाँ से भेज देते हैं दूसरा नालको पे। मतलब यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग नहीं करते, ओके, हम लोग भेज देते हैं उसको अनुगुल, या कहीं पे एक और नालको है आप लोगों का पता होगा अगर आपको, तो वहां पे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस जो है वो होता है। तो चलिए देखते हैं एल्यूमिना। क्या आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने बॉक्साइट देखा है बट आप लोगों को पता नहीं है? क्या आप लोगों ने कभी बॉक्साइट देखा है? नो Yes, सर। sir. सबको लगता है कि आप लोगों ने बॉक्साइट नहीं देखा है। कुछ पूजा के टाइम पे हमारे घर के सामने में मम्मी लोग क्या करते हैं, लाल मिट्टी से पूरा एक गोल बनाते हैं बड़ा सा। Yes, Yes, sir. sir. क्या आपको पता है कि वही लाल मिट्टी बॉक्साइट है और कुछ नहीं है? हाँ, सो दैट्स बॉक्साइट। ओके, अ लार्ज कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम इनसाइड इट, द ओर जो प्रेजेंट है इसके अंदर, जिसके वजह से वो रेड कलर दिखता है। हाँ, सो दैट्स बॉक्साइट एंड मोस्ट ऑफ यू हैव सीन इट। हाँ, तो वो बस प्यूरिफाई नहीं हुआ है, उसी से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सोचो, जो मिट्टी जैसा दिखता है वहां से हम लोग एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज वो कंबाइंड फॉर्म है। उसे लीचिंग करते हैं और लीचिंग के बाद हम लोग वहां से जो है एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए, ये तो हुआ एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बात। चलिए, हाँ, रोंगोमाटी, हाँ, रोंगोमाटी ही है। चलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग पहले एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं। जब आप लोग इसको एक एसिडिक मीडियम में लेते हैं, एल्यूमिनियम खुद कैसे रिएक्ट करेगा सर? एक बेस के जैसे रिएक्ट करेगा। ओके, तो देखते हैं। मैंने HCl एक्वस लिख दिया। एक्वस लिख दिया मतलब क्या? वाटर भी प्रेजेंट Water रहेगा। present, sir. वेरी गुड। तो हियर एल्यूमिनियम विल एक्ट एज एन electron pair acceptor। that means what? एल्यूमिनियम वाटर का लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करके एल्यूमिनियम जो है हेक्सा एक्वा एल्यूमिनेट बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम। चलो, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम बनाता है। along with that 6Cl- रिलीज करता है।
तो अब बात ये है कि सर ये हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम जो आप बोल रहे हैं ये कैसे बना, क्या हुआ यहाँ पे? चलिए वो भी हम लोग देखते हैं, बहुत डीपली हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। प्लीज हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इन एल्यूमिनियम ऑक्साइड don't you think aluminium is present in its +3 oxidation state? Yes, sir. Yes, aluminium is present in its +3 oxidation state. अगर हम लोग एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, दैट मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 3d0 रहता है, 3s2 3p1 3d0 रहता है। अब ध्यान से देखो तो बेटा, एल्यूमिनियम 3+ बोलने से 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया। Yes, sir. सो 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, मतलब ऑब्वियस सा बात है 3s0 3p0 3d0। Yes, sir. दैट मीन्स अब देखो तो एल्यूमिनियम के पास कितने सारे खाली घर पड़े हुए हैं, देखो कितने सारे खाली घर। इन घरों में कुछ कोई नहीं रहता है। तो अब जैसे ही एसिडिक मीडियम में हम लोग रिट्रीट करना स्टार्ट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्या तुम्हारे घर पे मैं अपना लोन पेयर को रेंट पे रख सकता हूं? तो एल्यूमिनियम बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्या करता है, अपना पूरा का पूरा लोन पेयर एल्यूमिनियम का एक एक ऑर्बिटल में डोनेट करना स्टार्ट करता है। तो ऐसे कितने वाटर्स आ रहे हैं, ऐसे 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल आया, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, यहाँ पे हमारा तीसरा वाटर मॉलिक्यूल आया, 4th वाटर मॉलिक्यूल आया, 5th वाटर मॉलिक्यूल आया एंड एज वेल एज योर 6th वाटर मॉलिक्यूल आया। तो क्या आप लोगों को लग रहा है अरे सर 3 और घर खाली है, 7 8 9 भी आ जाता तो अच्छा रहता? नहीं आ Yes, sir. सकता, नहीं आ सकता, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल के बाद आफ्टर 6 केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बोले हैं AB6 के बाद AB7 इज हाईली अनस्टेबल, बहुत ज्यादा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे क्या आप लोगों को लग रहा है एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर का काम किया, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट किया, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं दैट एल्यूमिनियम हियर इज एक्टिंग एज एन लुईस एसिड? तो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है हम लोगों का जो एल्यूमिनियम है, इट इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स। समझ में आया सर ये रिएक्शन कैसे हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो ऐसे जो बॉन्ड बनता है सर, जहां पे एक एलिमेंट या एक कंपाउंड जो है ना, जो अपना दोनों इलेक्ट्रॉन एक वैकेंट ऑर्बिटल में भाड़े में लाके रखता है या फिर वहां पे डोनेट करता है और खुद बॉन्ड करता है, इसे हम लोग सबसे पहले बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या फिर जिसको डेटिव बॉन्ड भी आप लोग बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं या फिर डेटिव बॉन्ड बोल सकते हैं। और ऐसा जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ओके, ऐसा जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन के जो आता है उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। और मैंने पहले भी आप लोगों को ये H2O टाइप ऑफ कंपाउंड्स का डेफिनेशन बताया था, इन्हें हम लोग बोलते हैं लाइगेंड्स। याद आ रहा है कुछ? ए न्यूट्रल और ए नेगेटिवली चार्ज Yes, sir. स्पेसिस, yes, which can donate its electrons to a vacant orbital, especially of the transition elements. तो हम लोग इसको बोलते हैं ligands। तो एल्यूमिनियम में इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया और इसने एक कंपाउंड बनाया। क्या ये क्लियर है? बताइए Yes, जरा। sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, वेरी sir. गुड सर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है, राइट? चलिए, तो अब हमें समझ में आया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है एसिडिक बिहेवियर कैसे शो कर रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है। चलिए हम लोग वो भी देखेंगे। नेक्स्ट सर, वी आर अगेन टेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 सॉलिड एल्यूमिना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, एंड आई एम ट्रीटिंग इट विथ NaOH दिस टाइम। आई एम ट्रीटिंग इट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस। तो ऑब्वियसली एक्वस है मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स पक्का रहेंगे। चलिए बहुत अच्छा बात है। तो यहाँ पे अब
बेसिक मीडियम में H2O एक्ट नहीं करेगा, बेसिक मीडियम में OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। दैट मीन्स Na प्लस एंड OH माइनस, OH माइनस, OH माइनस। तो एल्यूमिनियम का जो मेरा वैकेंट ऑर्बिटल्स है ना सर, इसमें कौन लाइगेंड के जैसा एक्ट करने वाला है अभी? तो मेरा OH माइनस लाइगेंड के जैसा एक्ट करने वाला है। और OH माइनस जो है वो अपना 6 मॉलिक्यूल्स जो है वो आएगा और यहाँ पे डोनेट करके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? चलिए इसका नाम लिखते हैं हम लोग। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सा हाइड्रोक्साइडो। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट। ओके, हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट लिख देता हूं यहां पे मैं, ध्यान से देखिए। हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट और ब्रैकेट में लिख देंगे 3, बिकॉज एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो DO, हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट 3। लेकिन सोडियम भी अटैच्ड है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्साइडो एल्यूमिनेट 3। इसका कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? Na3AlOH होल 6। ओके, ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रहेगा Na3AlOH होल 6। तो दैट मीन्स हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे एसिड के साथ भी रिएक्ट किया, यहाँ पे बेस के साथ भी रिएक्ट किया। एज इट इज रिएक्टिंग विद बोथ एसिड्स एंड एज वेल एज बेसिस, सो ऑब्वियसली व्हाट वी कैन से इज वी कैन कॉल देम एज नथिंग बट आर amphoteric oxides. Is this clear, sir? Yes, sir. Yes, such a beautiful reaction, okay, of aluminium. अब ये दोनों methods और ये दोनों reactions में जो दोनों products बन रहे हैं, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3, हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3 and hexa hydroxido aluminate 3, both of these compounds are coordination compounds and both of these complexes are coordination complexes. Right now moving ahead, हम लोगों को क्लियरली दिया हुआ है न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी लिख के आप लोगों को बता दिया है। न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जांपल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दैट इज योर नाइट्रस ऑक्साइड and dinitrogen oxide that is your N2O. These are the 3 neutral oxides. तो अब अगर कोई तुम लोगों से पूछ लिया पूरा पीरियोडिक टेबल में, अरे बताओ बेटा एसिडिक ऑक्साइड्स कौन है, तो तुम बोलोगे अरे मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, आपको इतना नहीं पता है, ऐसे बोलोगे। सर बताओ जरा बेसिक ऑक्साइड्स कौन है, बताओ मैंने अभी जो बोला सही बोला? नो सर, आप वो गलत बोल, एसिडिक का नॉन मेटल होगा, बेसिक का मेटल होगा। हाँ तो बोलना चाहिए ना। यस, वेरी गुड। सो हम लोगों ने क्या बोला अभी, वही तो मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों को। मैं घोड़ा दिखा के मैं बोलूंगा ये गधा है, तुम लोग बोलोगे हाँ, जल्दी रिएक्ट नहीं करते हो आप लोग। ठीक, चलिए तो मैंने क्या बोला अभी, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, एंड आपका मेटेलॉइडिक ऑक्साइड्स या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जिनको हम लोग बुलाते हैं, ये बोथ एसिडिक एंड एज वेल एज बेसिक बिहेवियर जो है शो करता है। क्लियर है सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। No, sir. न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल भी याद हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। एंड इसी के साथ साथ हम लोगों को ये भी पता चल गया कि सर जब कोई भी एक मेटल ऑक्साइड जहां पे मेटल अपना हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Very good. Such a beautiful reaction, such beautiful concepts. You people have to enjoy this actually. But जो लोगों को समझ में आ रहा होगा वो लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप लोगों का। मतलब आप अब केमिस्ट्री का एक बड़ा चंक जानते हैं। दैट मीन्स चलो भाई मुझे एक पीरियोडिक टेबल दो, मैं बताऊंगा ओके
these are the non-metals, these are the metals, these are the transition elements, these are strictly metals and these are metalloids. ओके इसका ऑक्साइड के बारे में मुझे पता है, इसका ऑक्साइड के बारे में मुझे पता है, ग्रुप 15 का हाइड्राइड्स के बारे में मुझे पता है, टॉप टू बॉटम एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, बॉन्ड डिफ्यूजन एंथैल्पी डिक्रीज होता है. सी दैट मींस आप लोगों को अभी पीरियोडिक टेबल का हर एक एलिमेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो जाएगा जैसे ही हम लोग यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म करेंगे. ओके राइट. सो हम लोगों को ये बहुत ही अच्छे से ओके क्लियरली हम लोगों को समझ में आना चाहिए. ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम है? नो सर. No, sir. No, sir. ओके राइट. नेक्स्ट हम लोग एक एलोट्रोपिक ओके क्या बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे. ओके सो एक और एलोट्रोप जो है हम लोगों का वो कौन है सर? आपका ऑक्सीजन का ओजोन. ओजोन. ओजोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. उससे पहले किसी ने एक डाउट पूछा है, कौन है? तनुश्री. सर एल्यूमिनियम के अलावा कोई और ऑक्साइड है क्या जो कि एम्फोटेरिक है इन नेचर? यस सर, और भी ऑक्साइड्स हैं हमारे पास जो कि एम्फोटेरिक हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक है नेचर में. लिखिए अगर आप लोगों को एग्जांपल्स चाहिए. एम्फोटेरिक में Al2O3 एक एग्जांपल है, जिंक ऑक्साइड एक एग्जांपल है जो कि एम्फोटेरिक है इन नेचर. ओके बोथ ऑफ दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर. आप लोगों को और एग्जांपल्स अगर चाहिए ये दोनों काफी होना चाहिए फिलहाल के लिए. एम्फोटेरिक ऑक्साइड में हम लोगों का और कौन आ जाएगा? आप लोगों का MgO भी आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. दो ये थोड़ा सा बेसिक होता है येट ये भी थोड़ा सा एम्फोटेरिक नेचर शो करता है, बट स्पेशली आप लोग Al2O3 एंड ZnO पे फोकस करेंगे. ओके यस ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग आते हैं ओजोन पे. हम सबको पता है सर अभी ओजोन, we all know that ozone plays a very vital role in our atmosphere. Yes or no? यस सर. What is अल्ट्रावायलेट it? रेज से बचाते. Yes, it acts as a protective layer which does not allow the harmful ultraviolet rays to enter into our Earth's atmosphere. Ultraviolet, तो आप लोगों को अब तक पता होगा ultraviolet rays मतलब they have small wavelengths, very Yes, sir. small wavelength lambda. Small wavelength मतलब high energy. तो जनरली अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्टली एंटर कर देंगे हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में, then they are very harmful for humans and other animals also, because ultraviolet rays high exposure to ultraviolet rays can create cancer, can be responsible for cancer also, right? So and they are also responsible for your global warming. So ozone, the ozone layer is a very protective layer which is helping us. तो अभी कोरोना के चलते the ozone layer में जो डिप्लीशन हुआ था, जो हमें लगा था और 40-50 years लगता डिप्लीशन को ठीक होने में, जो कि काफी जल्दी से रिकवर कर चुका है. पता है हम लोगों को ये बात? यस सर. Yes, sir. वेरी गुड. तो अभी हम लोग इसी ओजोन के बारे में पता करने वाले हैं सर और पढ़ने वाले हैं. सो एज ओजोन अगर सी लेवल में प्रेजेंट रहेगा, O3 अगर सी लेवल में प्रेजेंट रहता है, तो लैंड पे सी लेवल पे ओजोन बनता है. कब? ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म. इफ यू गो नियर अ पॉन्ड और इफ यू गो नियर अ रिवर के पास तो तुम्हें उतना खास पता नहीं चलेगा. पॉन्ड और एनी वाटर बॉडी ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म आप लोगों को फिशी स्मेल आएगा वहां पे. जैसे ही आप लोग जाएंगे ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, आप लोगों को एक फिशी स्मेल आता है, जिसको कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ड्यूरिंग these rainy days, this particular smell you will be finding it, okay, the fishy one. तो थंडरस्टॉर्म के प्रेजेंस में क्या होता है? थंडरस्टॉर्म के वक्त जो है, जो ये लाइटनिंग के प्रेजेंस में जो है ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होता है, बट ये इतना रिएक्टिव होता है कि वो इमीडिएटली डिसइंटीग्रेट होके वापस
ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओजोन बनता है वो इमीडिएटली ब्रेक होके वापस आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है। बात करेंगे इसके बारे में हम। ओके, तो अभी फिलहाल हमारा ओजोन लेयर कहाँ पे है? एट ए हाइट ऑफ अबाउट 20 किलोमीटर फ्रॉम द लैंड, 20 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस हमारे पास हमारा ओजोन लेयर है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और सनलाइट के प्रेजेंस में जो पहले बना हुआ था। This ozone layer protects the earth's surface from excessive concentration of your ultraviolet radiations, which are very harmful for earth and as well as for us. Now what we will see is we will see the preparation method of this ozone. We will have a look at the preparation method of ozone. So how is ozone prepared? Sir, ऑक्सीजन गैस के थ्रू, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया सर, थंडरस्टॉर्म के वक्त ओजोन प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सीजन के थ्रू आप अगर साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज अगर आप लोग देते हैं, बिकॉज हमें पता है ओजोन इज अ हाईली फ्लेमेबल गैस, ये इमीडिएटली फायर कैच करता है, कंबस्ट हो जाता है, तो इसीलिए हम लोगों को एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देना है। So if I am giving a silent electrical discharge in oxygen, okay, what will happen, sir? What will happen? Immediately oxygen will form your ozone, that is your O3. So 3 moles of O2 will give you 2 moles of ozone. But remember that this reaction is an equilibrium reaction. That means oxygen अगर ओजोन बना रहा है, then ओजोन भी immediately disintegrate होके वापस आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट? क्या ये बात समझ में आ रहा है सर आपको? यस सर। यस सर। ये राइट। सो देखिए यहाँ पे, since the formation of ozone from oxygen is an endothermic process, देखिए the enthalpy of reaction for this particular reaction is plus 142 kilojoule per mole, plus 142 kilojoule per mole। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन है मतलब जब भी हम लोगों का एटमॉस्फेयर में जब हम लोगों का ओजोन प्रेजेंट रहता है, तो इमीडिएटली वो एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर, मतलब देखो सर, is an endothermic process। तो बताइए इसका रिवर्स रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक। यस सर। अगर ऑक्सीजन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ओजोन इज एंडोथर्मिक, इट रिक्वायर्स एनर्जी, तो क्या इसका रिवर्स, दैट मींस ओजोन गेटिंग ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीजन is going to be what, sir? Is going to be an exothermic process। that means it is going to release heat energy। यही तो रीजन है सर, यही तो कंडीशन है यहाँ पे जिसके वजह से ओजोन जो है इजीली ब्रेक हो जाता है, ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो इमीडिएटली जो है हम लोगों का ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये एनर्जी भी रिलीज करता है। राइट? यस सर। तो अगर हम लोगों को ओजोन हाई कॉन्सेंट्रेशन में बनाना है तो हम लोग ओजोनाइजर्स का यूज कर सकते हैं। सीबीएसई सिलेबस में हम लोगों का ओजोनाइजर्स नहीं है, बट स्टेट सिलेबस में, सीएचएसई सिलेबस में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को ना ओजोनाइजर, दैट इज आप लोगों को 2-3 टाइप का ओजोनाइजर्स हम लोगों को वहां पे मिल जाते हैं और जिनके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। साइमंस ओजोनाइजर होता है सीएचएसई में, ओके, जहां पे हम लोगों को बताया जाता है कि ऑक्सीजन को कैसे पास करते हैं और वहां पे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज कैसे देते हैं और वहां से ओजोन जो है कैसे रिलीज होता है। सो इट्स नॉट इन आवर सिलेबस, सो वी वोंट वरी मच अबाउट दैट। ओके, सारे एनसीईआरटी में भी नहीं है सर? अरे एनसीईआरटी में नहीं है तभी तो मैंने बोला सीबीएसई में नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ही फॉलो करते हैं ना बेटा। नो सर, मुझे लगा कि रिड्यूस्ड सिलेबस में नहीं है, इसलिए सॉरी सर। रिड्यूस्ड नहीं, मैंने बोला सीबीएसई हमारे एनसीईआरटी सिलेबस में ही नहीं है, इसीलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे ये। अगर किसी को इंटरेस्ट है कि साइमंस ओजोनाइजर कैसे काम करता है अगर पता करना है, यू कैन बोरो सम सीएचईसी फेलोज टेक्स्ट बुक एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट। बहुत सिंपल सा है, अगर आप लोग मेरे से पूछोगे तो मैं वो ड्रॉ करके भी बता सकता हूँ।
इस तरह से 4 प्लेट रहेंगे, ये दोनों इधर कनेक्टेड रहेगा, ये दोनों इधर कनेक्टेड रहेगा। कैपेसिटर्स में इस टाइप का एक अरेंजमेंट आप लोग देखे होंगे, राइट? Yes, sir. इसके थ्रू हम लोग जो है ऑक्सीजन पास करेंगे और एक साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज देंगे इनके बीच में, और ओजोन गैस जो है हम लोग का अदर साइड से हम लोग को मिल जाएगा। इन्हें ओजोनाइजर्स बोलते हैं, जहाँ पे साइलेंट इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज दिया जाता है। नॉट टू वरी, नथिंग मच इंटरेस्टिंग ओवर हियर। प्योर ओजोन हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 385 केल्विन, कैन condense in a vessel surrounded by liquid oxygen. Okay, so liquid oxygen एक सराउंडिंग कंटेनर में रख के हम लोग ओजोन को जो है लिक्विफाई कर सकते हैं या कंडेंस कर सकते हैं। Now, this is what we have learned for our preparation of ozone. There is only one preparation method. Okay, next we will go for our properties. The properties we will be learning in our next class, because अभी start करूंगा अभी तो खत्म नहीं होगा, right? But अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, राइट, उसको अच्छे से आप लोग देखेंगे दोबारा। बहुत लॉजिकल चीजें हम लोगों ने देखा। ऑक्साइड्स हम लोगों ने देखा, किस किस टाइप के ऑक्साइड्स होते हैं। सिंपल ऑक्साइड, ओके, हमारा एसिडिक ऑक्साइड्स, राइट। बाइनरी ऑक्साइड्स क्या है, बाइनरी का मीनिंग क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड्स क्या है, सिंपल ऑक्साइड्स क्या है, ऑक्साइड क्या है, पेरोक्साइड क्या है, सुपर ऑक्साइड क्या है। हम लोगों ने ढेर सारी चीजें जो है यहाँ पे आज डिस्कस किया है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों का जो है, हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का 2 रिएक्शंस भी देखे। हम लोगों ने कोशिश किया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन को अच्छे से समझने के लिए, ओके। और मैंने बताया कैसे इस रिएक्शन में से पक्का हम लोगों को एक क्वेश्चन श्योरली आने वाला है, इधर सीबीएसई में, नहीं तो जेई में, नहीं तो हम लोगों के नीट में। सो आई वांट यू पीपल टू कंप्लीटली फोकस ऑन दिस and read it properly and even revise the preparation method of ozone, okay? And we will meet again in our next class where we will study the properties of ozone and we will continue from here. Is that okay, sir? Yes, sir. Yes. sir. So